Okay, a very good morning to one and all. So I think that my screen is visible to all of you. Please mute your phones so that the class can be conducted smoothly. Okay, today we are going to discuss about the lymphocyte development and activation. How these lymphocytes they develop within a particular immune organ and how they become activated with the help of different cells. So basically, what is the function? What is the objective of these lymphocytes? Basically, they help in the recognition of the antigen by specific lymphocytes. First, second means the first function is to recognize the antigen. Second, the activation of these specific lymphocyte means like with the help of interleukins. What is interleukins? Interleukins are the proteins molecule that is secreted by one lymphocyte and act on another leukocyte. Clear? So basically the proliferation and differentiation into effector cell and memory cells. So how they help to differentiate these B cell into effector and memory cells, we will see. Then the fourth function is to elimination of antigen by different effector function, and lastly to return to homeostasis, isn't it? यानी पहला क्या करेगा, ये एंटीजन को रिकॉग्निशन करेगा, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा फर्दर, ये जो डिफरेंट आपके जो बी सेल्स हैं या फिर टी सेल्स हैं उनको प्रोलिफरेट करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स में. इफेक्टर सेल्स जो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं डायरेक्टली, मेमोरी सेल्स फॉर फ्यूचर पर्पस. ठीक है. देन आफ्टर दिस they participate for elimination of the antigens by different effector functions, and lastly return to homeostasis. Clear? So these memory cells, how they help? These memory cells, how they help? So basically, these memory cells evoke a more rapid and long response on re-exposure of same antigen. If an organism is infected by a same antigen in future, then these memory cells directly neutralize all those antigens, okay, which are identified those memory cells. Clear? So we will see how this hematopoiesis, or sometimes we also call hemopoiesis. Okay, so both these terms are same. Hematopoiesis or hemopoiesis means the blood formation, the procedure of blood formation. So in case of humans, where blood formation occurs, where the blood cells form, can anyone say? In bone marrow. In the bone marrow. But in case of fishes, it occurs in the anterior kidney, isn't it? Anterior. Clear? So basically, in this process, if we see that there is a particular stem cell, we can call it multipotential hematopoietic stem cell or hemocytoblast. Okay, blast means blood forming initial cells, progenitor cell. Clear? So basically, this is the stem cell which having the multipotential hematopoietic ability. When this stem cell differentiates, it differentiates in two lineages. One becomes the common myeloid progenitor and another one will become the common lymphoid progenitor. माइलॉइड प्रोजेनाइटर कौन कौन से हो गए? ऐसे कोई भी फेगोसाइटिक सेल्स जो हमारे डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर कौन हो गए? जिनसे हमारी एंटीबॉडी सेक्रेट होती है या पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी सेक्रेट होती है, मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ सेल सेल्फ एक्टिवेट करते हैं किल करने के लिए. ठीक है. तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स में जैसे नेचुरल किलर सेल्स हो गए और स्मॉल लिम्फोसाइट्स हो गए.
नेचुरल किलर सेल्स क्यों? बिकॉज दीज आर लार्ज ग्रेन्युलर lymphocytes. Okay, small lymphocyte क्यों? Because these are small comparative to the natural killer cells. Okay, so in case of human, this is the natural killer cells. In case of fish, this is the natural cytotoxic cells, NCC. Clear? So when small lymphocyte again they differentiated into two cells. The one is T lymphocytes, means thymus derived lymphocyte, and another one is B lymphocytes. Okay, so from B lymphocytes, these differentiated when an organism is infected by a particular antigen. These B lymphocyte differentiates into plasma cells and memory cells, and these plasma cells which secrete particular antibody which have specific paratope against a epitope. Clear? Now you see myeloid progenitor cells. So what are the myeloid progenitor cells? These are the basically erythrocytes or megakaryocytes, like thrombocytes, what we say, ठीक है, or platelets. So erythrocytes, thrombocytes, mast cells, and myeloblasts. Myeloblasts differentiates into basophils, neutrophils, eosinophil, and monocytes. Clear? And this is the monocyte where the 2 or 3 monocytes, when they comes and join together, they form macrophage. Clear? Any confusion regarding this? So now you come to know कि कैसे ब्लड फॉर्मेशन होता है, कैसे स्टेम सेल दो प्रोजेनाइटर सेल में डिवाइड होते हैं, और ये प्रोजेनाइटर सेल अपने अपने लीनिएजेस को फॉलो अप करते हुए डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू आउट बॉडी सर्कुलेट करता रहता है. इसमें किसी को डाउट है? ओके, so from our previous studies we are knowing that about acquired immunity. So basically there are two mechanisms involved for this purpose. One is humoral immune response and one is cell mediated immune response. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल mediated. सेल mediated कहने का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें कोई एक सेल मीडिएट करता हो, एक मीडिएटर चाहिए, ठीक है, क्लियर? और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? दे सिक्रीट सर्टेन काइंड्स ऑफ साइटोकाइंस और पेंट्रैक्जिन्स व्हिच इटसेल्फ डेंजरस फॉर दैट पैथोजन और एंटीजेंस. क्लियर? सो तो ये एक्वायर्ड, जैसे हम लोग क्या बोलते थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और क्या होता था एक, कोई बोल नहीं रहा, इनेट इम्यूनिटी. सो इनेट इम्यूनिटी क्या थी? इनेट इम्यूनिटी में भी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और कुछ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होंगे. कहने का क्या मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होंगे, एक तो इसमें भी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होगा और एक होगा सेल मीडिएटेड, यानी कि सेल मीडिएट करते हैं. यहां पे हम देखेंगे बेसिकली, हम आप लोगों को कई एक बार बताए हैं कि जैसे बी सेल्स हुए या टी सेल्स हुए, हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं. हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे लिम्फोसाइट डेवलपमेंट होता है, कैसे ये एक्टिवेशन होता है, और कैसे किसी एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है या फर्दर किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है एंटीबॉडी डेवलपमेंट के लिए. क्लियर? सो बेसिकली बी लिम्फोसाइट जब हम बात करते हैं, आप लोगों को बताए हुए भी है कई एक बार कि बी लिम्फोसाइट is a part of specific immune system, क्योंकि they are very much specific. They release certain kinds of antibodies which are very much specific to a particular antigen. तो B lymphocyte में होता क्या है बेसिकली? B lymphocytes जो होते हैं या B cells, वो क्या होते हैं? तो these expresses a unique antigen binding receptor on its membrane. ये देखिए मेरा स्क्रीन आप सभी लोगों के सेल फोन पे दिख रहा है? Yes, sir. Okay, so you see this is the B cell and you clearly see that there are certain receptors
which are expressed on their cell surfaces. Clear? So basically these are antigen binding receptors. We also called it as antibodies. ठीक है? बी सेल रिसेप्टर्स कैसे होते हैं ये देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, CD79A, CD79B और भी अदर्स CD होते हैं. CD होता क्या है एक्चुअली? CD इज, सभी लोग लिख रहे हो ना कुछ कुछ, जो मैं चीज बताते जा रहा हूं या कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं, सो प्लीज राइट इट डाउन इफ यू थिंक दैट दिस इज एसेंशियल. सो बेसिकली CD मीन्स क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन. दीज आर पर्टिकुलर प्रोटीन्स which are designated, ठीक है, designated by a series like CD79, 1, 2, 3, 12, 14, whatever. so तो यहां पे यही जो दिया गया है कि ये जो आप एंटीबॉडीज देख रहे हो ये किस तरीके से इंबेडेड होता है, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये एक्सप्रेस करता है. ठीक है? सो बेसिकली दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इजंट इट? अब क्या होता है? देयर आर सर्टेन फेनोटाइपिक मार्कर्स. फेनोटाइपिक मार्कर्स कहने का क्या मतलब है? फेनोटाइपिक मार्कर्स कहने का मतलब दोज कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी विजिबल, इजंट इट? तो क्या फेनोटाइपिक मार्कर्स होते हैं? जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, और फेनोटाइपिक मार्कर क्या है? फेनोटाइपिक मार्कर जो प्रोटीन वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने सेल सरफेस पे. जैसे अभी आपने देखा CD79, तो नेचुरल किलर सेल्स है, इनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली नेचुरल किलर सेल और इन केस ऑफ फिश नेचुरल साइटोटॉक्सिक सेल्स, they participates in the lysis of virally infected cells and various tumor cells or neoplastic cells. Clear? So basically if we see the phenotypic markers, these are CD16, 56 and CD3, जिससे हम डेजिग्नेट कर सकते हैं कि ये नेचुरल किलर सेल है. ठीक है? क्लियर? देन हेल्पर टी सेल्स. व्हाट इज हेल्पर टी सेल्स? द फंक्शन इज, अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो दूसरे इम्यून सेल्स को के डेवलपमेंट में, ठीक है, या मैसेंजर जो एक लिम्फोसाइट, एक इम्यून सेल से दूसरे इम्यून सेल्स के बीच में जो मैसेजिंग होगी उसके बीच में ये कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं. क्लियर? सो बेसिकली दे रिलीज साइटोकाइंस एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स दैट रेगुलेट अदर इम्यून सेल्स. सो व्हाट आर द फेनोटाइपिक मार्कर? सो बेसिकली दे एक्सप्रेसेस ऑन देयर सेल सरफेस which proteins? तो TCR alpha beta. What is TCR? Basically these are T cell receptor. TCR means T cell receptor, alpha beta. Then again what are the cluster of designation from which they varies from other cells? So basically these are CD3 and CD4. याद रखिए ये आपके क्वेश्चंस में कभी कभी आते रहते हैं कि हेल्पर टी सेल्स कौन से फेनोटाइपिक मार्कर्स होते हैं हेल्पर टी सेल्स के ऊपर में? सो बेसिकली दिस इज CD4 एंड CD3. ठीक है? इन केस ऑफ फिश CD4 का जो रोल है वो क्लियरली डिस्टिंक्ट है. समझ में आ रहा है? सो बेसिकली दिस इज अ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दे मे आस्क इन योर एंड टर्म एग्जामिनेशन, इवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल. देन अगेन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यहां पे क्या होते हैं? टी सेल रिसेप्टर अल्फा बीटा जैसे हेल्पर टी सेल्स में होते हैं, सेम होगा. CD3 यहां भी होता है, CD3 यहां भी होता है. तो डिफरेंस कहां पे है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में? बेसिकली देयर आर वेरियस टी सेल्स लाइक टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स. तो अलग अलग क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं जो अपने सेल सरफेस पे वो अलग करते हैं. तो सपोज यदि हमको हेल्पर टी सेल से साइटोटॉक्सिक टी सेल के बीच में डिफरेंस देखना होगा तो हम लोग कौन से प्रोटीन का एक्सप्रेशन देखेंगे? सो बेसिकली CD4 एंड CD8. समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो? यस सर. देखो सोना मत कोई, ठीक है? मैं जो बात करने जा रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली
तो हम लोग किस प्रोटीन के बीच में डिफरेंस देखेंगे? दिस इज द CD4 एंड CD8। तो CD8 किसको किस पर एक्सप्रेस करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे, और हेल्पर टी सेल्स पे कौन करेगा? CD4। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टी सेल्स विच टेक्स पार्ट इन इम्यूनोरेगुलेशन एंड साइटोटॉक्सिसिटी, इसमें क्या होता है? CD3। सो बेसिकली आप देखिए टी सेल्स में कौन से कॉमन क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशंस हैं? तो ये है CD3, ठीक है, ये कॉमन है। बट लेकिन डिफरेंस कहां पे होगा? CD4 CD8 में, ठीक है। और टी सेल रिसेप्टर जो है ये अलग होता है टी सप्रेसर सेल में, या जो इम्यूनोरेगुलेशन और साइटोटॉक्सिसिटी में रोल प्ले करते हैं। यहां पे देखिए आप गामा जो है वो होते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं? अब बी सेल्स जो होता है इनका फंक्शन होता है एंटीबॉडी को सिक्रीट करना, सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। So basically what kind of proteins they expresses on their cell surface? So basically they expresses MHC class 2। MHC मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली और लिखवाया भी था, देयर आर बेसिकली 3 काइंड ऑफ MHC क्लासेस। In case of human, we called it as HLA, human leukocyte antigen, isn't it? Or HLC, human leukocyte complex। क्लियर है ना? याद आ रहा है कुछ? हेलो हेलो, ओके, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। देन अगेन व्हाट इज द क्लोनल एक्सपेंशन थ्योरी? क्लोनल सर एक्सपेंशन, हाँ यस। देखो तुम लोग सर थोड़ा, वो हाँ सर बताओ, इसमें थोड़ा पीछे पीछे वाला स्लाइड पे जाएंगे। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो नंबर जो है जैसे CD4 है, CD3 है, CD8, तो मतलब ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये नंबर क्या है? ये मैंने अभी जस्ट बताया, दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस। नंबरिंग किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बेसिकली CD इज क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन। द जीन्स दे synthesis certain kinds of proteins that expresses on their cell surface, उसके सेल सरफेस के ऊपर में रहेंगे, ठीक है। और बेसिकली जब हम लोग प्रोटीन एनालाइज करते हैं तो प्रोटीन एक्सप्रेशन स्टडी की जाती है कि कौन से प्रोटीन है, उसका मोलेकुलर वेट कितना होगा। अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर वेट देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर divided into several categories of proteins known as CD। क्लियर? ठीक है। कौन पूछा था? गणित? yes. हाँ चलो ओके, आगे बढ़ो। यस सर। सो बेसिकली क्लोनल एक्सपेंशन थ्योरी क्या है? क्लोनल एक्सपेंशन कहने का क्या मतलब है कि कैसे एक बी सेल एक से डबल, डबल से 4, 4 से 16 और 16 से कितना होगा? कितना होगा? 4 से 16, 16 टू 232, नहीं, ये कैसे रिप्लिकेट करते हैं? सो बेसिकली होता क्या, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। यू सी देयर आर वेराइटी ऑफ बी सेल्स विद इन आवर सिस्टम, ठीक है। अब ये बी सेल्स में क्या होते हैं? एंटीजन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीजन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स या एंटीबॉडी हम लोग बोल सकते हैं। किसके सेल सरफेस पे होगा? बी सेल के। ये बी सेल क्या करता है? अब ये जो एंटीजन होंगे बी सेल, ये बी सेल क्या करेगा? पर्टिकुलर एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद क्या होगा? बाइंड करने के बाद ये सेम, मतलब कि विद द सेम स्पेसिफिक पैराटोप, कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक पैराटोप होना चाहिए, वो प्रोलिफरेट करने लगते हैं। The specific B cells having a specific paratope against a specific epitopes। क्लियर? अब ये क्या होता है? ये प्रोलिफरेट किए। प्रोलिफरेशन के बाद क्या होता है?
ये जो बी सेल्स होते हैं फर्दर डिफरेंशिएट्स होंगे किसमें, एक इफेक्टर सेल्स में और दूसरा मेमोरी सेल्स में। इफेक्टर सेल्स कौन से होते हैं, इफेक्टर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं, वो इंड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब ये बी सेल्स क्या करेंगे, ये प्रोलिफरेट, ये डिफरेंशिएट करेंगे और प्रोलिफरेट करेंगे किसमें किसमें, इफेक्टर में और मेमोरी सेल्स में, ठीक है। जैसे बाइंड किया ये सेल्स डिवाइड हुए, डिवाइड किसमें होंगे, माइटोसिस होने के बाद एक इफेक्टर में और एक मेमोरी सेल्स में। अब मेमोरी सेल्स का जो सोमैटिक डिवीजन होगा ये सिर्फ क्या करेगा, मेमोरी सेल्स ही बनाएगा, और ये इफेक्टर सेल्स जो फेगोसाइटिक सेल्स है ये क्या करेगा, सिर्फ इफेक्टर सेल्स बनाएंगे। ये जो सेल्स होते हैं ये अब क्या करता है, ये सिक्रीट करता है प्लाज्मा सेल्स, और यही प्लाज्मा सेल्स है जो फर्दर, आप यहां देखिए कि जब बी सेल्स पे देखते हैं तो स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो एक्सप्रेस्ड है इसके सेल सरफेस पे। लेकिन यहां पे प्लाज्मा सेल्स क्या कर रहे हैं, ये फ्रीली लिबरेट कर रहे हैं आपके किसको, एंटीबॉडीज को। क्लियर? सो इट बिकम्स humoral factors, can we say it, because these are not cells but these are the protein molecules that are suspended into our blood cells, that are suspended into blood. Clear? अब ये मेमोरी सेल्स क्या होंगे कि फर्दर यदि इन फ्यूचर में सेम एंटीजन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है एक्सीडेंटली और नोइंगली हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे वैक्सीन के केस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी सेल्स, ये मेमोरी सेल तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा और फर्दर दे विल रिलीज प्लाज्मा सेल्स एंड दीज प्लाज्मा सेल्स विल लिबरेट एंटीबॉडीज इनटू ब्लड। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अब यहां पे है कि लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट स्टेजेस क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली आप देखिए ये जर्म लाइन है, नहीं, जर्म लाइन किस चीज का, स्टेम सेल का। ये स्टेम सेल्स किस में होंगे, अब इसमें डीजे रीअरेंजमेंट, ये एक जीन है, ठीक है ना, ये जीन होगा किसमें, क्या होगा, ये जो एच आप लोग पढ़े होंगे हैवी चेन और लाइट चेन, तो एच चेन में डीजे चेन, एच चेन में जो जीन्स होंगे वो डीजे जीन जो होता है उसमें रीअरेंजमेंट होता है और ये फर्दर बन जाते हैं अर्ली प्रो बी सेल्स, ठीक है। देन फिर यहां पे आएगा क्या, वी डीजे रीअरेंजमेंट होगा, यहां पे तो डीजे रीअरेंजमेंट हो गया, अब वी डीजे रीअरेंजमेंट होगा, ये भी जीन है, इस जीन में रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बी सेल्स बन गए। आप लोग इसको देखिए फिर कैसे वी डीजे रीअरेंज्ड होने के बाद आप यहां पे देखिए कि ये पर्टिकुलर सेल एक रिसेप्टर अपने सेल सरफेस पे एक्सप्रेस करने लग गया है ना। और इस तरीके से जब बार बार लगातार जब रीअरेंजमेंट होता चला जाएगा एक पर्टिकुलर मैच्योर बी सेल्स बन जाएगा जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज एक्सप्रेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बी सेल्स। अब कौन कौन से होंगे, इस पे IgD होगा, IgM होगा, IgA हो सकता है? ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से एल चेन जीन्स में भी रीअरेंजमेंट होता है और बेसिकली इसमें कौन से जीन रीअरेंजमेंट होते हैं, तो वीजे, यानी एच चेन में VDJ और इसमें वीजे। जब हम बोलते हैं वीजे चेन रीअरेंजमेंट, कहने का क्या मतलब, ये जो पर्टिकुलर लोकस है, जो लोकस होगा, जो VDJ जिसको हम करके डिजिग्नेट करते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब IG स्टेटस क्या है, अब यहां पे देखिए, आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हैवी चेन आया, सरोगेट, लाइट चेन, प्री बी सेल, रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस, और फिर फर्दर आपका एक वेल डेवलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं वो IgD या IgM या अदर IG वो एक्सप्रेस होने लगते हैं बी सेल्स पे। क्लियर? अब देखिए कैसे बी सेल डिफरेंशिएट होता है और कैसे टी सेल डिफरेंशिएट होता है। बेसिकली बी सेल डिफरेंशिएशन में जब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आपको याद होगा, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल हो गया, बेसिकली बी सेल में IgH जीन रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है।
IgH यानी IG हैवी चेन का जो जीन रीअरेंजमेंट होगा जिसमें VDJ होगा, ठीक है, ये जीन रीअरेंजमेंट होता है और यहां पे आपका जो बी सेल रिसेप्टर है, BCR कहने का मतलब प्री बी सेल रिसेप्टर, ये एक्सप्रेस होने लग गए, ये सिग्नल दिया और यहाँ पे देखिए बी सेल रिसेप्टर डिफरेंट डिफरेंट जो रिसेप्टर्स होंगे वो इस बी सेल पे एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो फर्स्ट चेक पॉइंट ये इन मोर डिटेल्स में है कि कैसे IgH जीन पहले हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट होता है, यानी सबसे पहला जीन रीअरेंजमेंट कौन सा होगा, तो हैवी चेन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेकंड में लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट होगा और कंप्लीट बी सेल, एक मैच्योर बी सेल आ गया, क्लियर। जो टी सेल डिफरेंशिएशन होगा उसमें क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर बीटा जीन रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। प्री टी सेल रीअरेंजमेंट में बीटा जीन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो सेकेंड चेक पॉइंट होता है यहाँ पे अल्फा जीन रीअरेंजमेंट होता है। यानी कहने का क्या मतलब, अब यहीं पे अल्फा या बीटा यानी हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल, ठीक है ना, ये अलग अलग टी सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो गए और अब आपके बॉडी में जो बीटा सेल लिए हुए, अल्फा सेल लिए हुए, जो हम लोग बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा, कहने का क्या मतलब कि ये जो टी सेल्स हैं हैविंग पर्टिकुलर अल्फा और बीटा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, अब बी सेल्स एक्टिवेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होगा कि जो कि टी सेल पे डिपेंडेंट होगा, कि मतलब पहले टी सेल एक्टिवेट होगा, टी सेल क्या करेगा, जो टी सेल पहले उस पैथोजन से बाइंड करेगा और तब जाकर के बी सेल को एक्टिवेट करेगा, यानी टी सेल डिपेंडेंट। और एक होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम टी सेल दे कैन एक्टिवेट एंड प्रोलिफरेट और न्यूट्रलाइज द एंटीजन। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन की बात यदि करें तो सो बेसिकली क्या होता है, यहां पर एंटीजन डायरेक्टली क्या करेगा, यहां पे टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे बी सेल्स को। तो कब करेंगे, जब ये बाइंड कर जाएंगे डायरेक्ट, यानी कि दे हैव स्पेसिफिक एपिटोप, pathogens having a specific epitope against that particular paratope, isn't it? Got my point? So after the stimulation of these B cells, they produce antibody. Antibody without taking assistance or without taking help from T helper cells. Example क्या हो सकता है, like polysaccharides and lipopolysaccharides of bacterial capsules, because lipopolysaccharides is a component of bacterial cell. Bacterial cell, well, am I right? Then what happens, यदि B cells activate हो जाए directly, what will be the, क्योंकि वहां पे जहां पर टी सेल डिपेंडेंट होगा वहां पे दो तरह के सेल डिपेंडेंट होते हैं, एक तो टी सेल, टी मेमोरी सेल भी होगा और बी मेमोरी सेल भी होगा। तो वहां पे जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो हायर मैग्नीट्यूड का होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी उनकी, ठीक है। लेकिन जहां पर बी सेल्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, इट मींस कि दे हैव स्पेसिफिक पैराटोप, तो उनकी मेमोरी लिमिट होगी, इसलिए वीकर इम्यून रिस्पॉन्स होगा देन टी डिपेंडेंट एंटीजेंस। यानी टी सेल्स, यानी यहां पर सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, हेल्पर सेल है, यहां पे कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है, टी सेल का भी बी सेल का भी। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा रेदर देन अलोन टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या होता है, टी इंडिपेंडेंट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में जनरली देयर आर नो मेमोरी सेल्स, नो आइसोटाइप स्विचिंग। आइसोटाइप स्विचिंग कहने का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो स्विचिंग होती है, जो क्लोनल एक्सपेंशन होता है वो नहीं होगा, नो सोमैटिक म्यूटेशंस, ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन नहीं होगा उसमें। म्यूटेशन कैसे
कि एक नया कोई जीन आ गया तो उस जीन में जो रीअरेंजमेंट होने की कैपेबिलिटी होगी वो नहीं होगी, क्योंकि नया एंटीजन नहीं है, ठीक है ना। टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन, आज के लिए यही रहने दो, आगे बढ़ो। Okay, let me finish then. T-dependent antigens are those that do not directly stimulate the production of antibody. यानी डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट दे रिक्वायर द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल्स लाइक प्रोटीन्स ऑन वायरसेस, बैक्टीरिया, फॉरेन रेड ब्लड सेल्स एंड हेप्टेन कैरियर मॉलिक्यूल्स। कहने का क्या मतलब, जितने भी कॉम्प्लेक्स कैरियर मॉलिक्यूल्स है, यू सी these are required T cell dependent activation for neutralizing that particular antigen, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसलिए जो भी वैक्सीनेशन होती है, जो वैक्सीन बनती है, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रखा जाता है, सो दैट आवर इम्यून रिस्पॉन्स will become more effective, more memorable in future, जो क्या बोलते हैं, इन फ्यूचर इन्फेक्शन, ठीक है। आगे बढ़े। एपीसी, अब क्या क्या होता है, कैसे पार्टिसिपेट करता, मैं बताता हूं आपको। एपीसी क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी ये एंटीजन को प्रेजेंट करता। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे फेगोसाइटोसिस होती है, और फेगोसाइटोसिस होने के बाद ये जो पैथोजेंस हैं वो स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स में, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, नहीं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, पेप्टाइड्स में। सो बेसिकली व्हाट आर द दीज पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स किसको बोलेंगे, किसी को पता है? सो बेसिकली दीज आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल एमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। अ चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड पेप्टाइड्स। तो अब ये क्या होता है, ये पेप्टाइड्स उसको पहले ये पैथोजन को इंजेस्ट करेंगे, उसको स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करेंगे, और ये पेप्टाइड्स जो कि इस मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं, जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन क्या है, तो दीज आर द प्रोटीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस ऑफ these phagocytic cells known as monocyte और मैक्रोफेज। ये क्या होता है, अब ये जो पेप्टाइड्स जो डाइजेस्ट किए हैं, इस पेप्टाइड्स को एक्सप्रेस कहां पे करेंगे, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे करेंगे, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब बी सेल जो है, अब इसका रोल होता है, इसके साथ साथ जैसे ही ये क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन इसके जो क्लेफ्ट होते हैं वो एक्सप्रेस किया, बी सेल क्या करता है, अब इसको इंटरनलाइज कर लेता है, किसको, इस एंटीजन को जो उसने एक्सप्रेस किया। ये जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है जो एक्सप्रेस्ड है इसके एमएचसी पे, इसको ये क्या करते हैं, इंटरनलाइज कर लिए एंटीजेंस को। अब वहां पे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग किसके साथ, तो क्लास 2 एमएचसी विथ प्रोसेस्ड एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दीज टी हेल्पर सेल्स एंड इंड्यूसेस प्रोलिफरेशन इनटू मेमोरी सेल्स, यानी टी मेमोरी सेल्स एंड टी इफेक्टर सेल्स। क्लियर? देखिए इसी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है टी डिपेंडेंट एंटीजेंस का और टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस का। तो बेसिकली टी डिपेंडेंट एंटीजेंस में क्या होता है, यहां पे बैक्टीरिया है, ये क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन मॉलिक्यूल मैक्रोफेजेज के ऊपर में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही इंटरनलाइज किया इन्होंने क्या किया, क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ इस पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो डाइजेस्ट कर लिए हैं इनको एक्सप्रेस करेगा किस पर, सेल सरफेस पे। गॉट इट? सेल सरफेस पे करने के बाद ये CD4, और CD4 प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कहां पे एक्सप्रेस होता है, बेसिकली ऑन हेल्पर टी सेल्स पे होता है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, तो CD4 पे। अब ये क्या किया, इसको लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद क्या होगा, देयर आर सर्टेन इंटरल्यूकिन्स। व्हाट आर द इंटरल्यूकिन्स? बेसिकली दीज आर द प्रोटीन सेक्रेटेड बाय वन ल्यूकोसाइट एंड एक्ट्स ऑन अनदर। तो ये क्या करेगा, इंटरल्यूकिन्स जो है वो सेक्रेट किया, अदर साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं किससे, इस एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल से। जैसे इनके साथ बाइंड किया, ये हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो गया और इंटरल्यूकिन्स रिलीज किए। रिलीज करने के बाद क्या होगा, अब डिफरेंट क्लोनल एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, यानी बी सेल्स बने,
बी सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। तो किसमें बनेगा, ये डिफरेंशिएट हो गया प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। मेमोरी रह जाएगा और प्लाज्मा सेल्स जो भी बने, ठीक है, ये जो प्लाज्मा सेल्स बने ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा डायरेक्टली आपके ब्लड में। क्लियर। तो ऐसे कोई भी पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो किसी पैथोजन के जो सरफेस पे हो या को उसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो उसके साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। सो बेसिकली दीज एंटीबॉडी हेल्प्स इन ऑप्सोनाइजेशन, इंटरनलाइजेशन, देन फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रलाइजेशन, बट नॉट they do itself. They do itself only neutralization, helps in opsonization. Clear? Helps in phagocytosis. Next. अब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, यहां पे दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड टी सेल्स एंड दे बेसिकली डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस व्हिच आर इनसाइड होस्ट सेल्स एंड आर इनएक्सेसिबल टू एंटीबॉडीज। यानी कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं जो कि फ्री अवेलेबल नहीं है। तो कहां पे है वो, हो सकता है हमारे किसी सेल के अंदर में हो, तो उसके लिए क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जरूरत पड़ेगी। यानी उस सेल के अंदर, यानी या तो उस सेल को फिनिश कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, जैसे यदि कोई एक बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट इंटर कर गया हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर टेररिस्ट मस्ट बी किल्ड और आइदर वो क्या करेंगे, बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उस बिल्डिंग को, वी हैव टू ब्लास्ट, इजंट इट। तो यही होता है कि बैक्टीरिया या वायरसेस ऐसे जो हमारे होस्ट सेल में आ गए हैं और एंटीबॉडी उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ या कैंसरस सेल्स जो होते हैं या ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज जो होते हैं, यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पे होता क्या है, दो तरह के सेल्स हैं जो मेन है। टी हेल्पर सेल्स हैव CD4 membrane glycoproteins on their cell surfaces as we have talked, and T cytotoxic cells have CD8 membrane glycoproteins on their surface. So basically we must know this. अब होता क्या है, यहीं पे है ये जो देखिए आप अल्फा चेन या बीटा चेन कैसे